guys, my name is Manish and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, where we bring you all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We have a great show lined up for you guys, but before that, I do have to remind you to check out our Zoom Facebook page, where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Virat Kohli shares his experience of raising daughter Vamika with wife Anushka Sharma. Kareena Kapoor Khan reveals Sharmila Tagore is yet to meet her newborn son. Did Aamir Khan want Vikram Vedha to be set in China? Sahil Shah identified as the prime suspect in Sushant Singh Rajput banned substance case. विराट कोहली और हार्दिक पांड्या दोनों ही रिसेंटली पापा बने हैं और इन ब्रांड न्यू डैडीज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं. While Hardik and his wife Natasha are parents to little Agastya, जो जल्द ही पूरे 1 साल के हो जाएंगे. अनुष्का नताशा अक्सर विराट और हार्दिक को उनके क्रिकेटिंग टूर्स पे अकंपनी करते रहते हैं, लेकिन while Virushka have kept pictures of their daughter's face away from the media, Hardik and Natasha अक्सर अपने बेटे के फोटोज और उनके साथ बिताए गए पलों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते रहते हैं. But what do Hardik and Virat feel about being fathers now? Take a look. अनुष्का और विराट ने अपनी बेटी की प्राइवेसी को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया है. They have only shared photos of their daughter, जहां उनकी बेटी का फेस नहीं दिखाई देता, but keep fans updated with moments and experiences from their life as parents. रिसेंटली एक इंटरव्यू में विराट ने कहा कि पापा बनने का एहसास दुनिया का सबसे खास एहसास है. He shared that the connection he feels with his daughter Vamika is unlike any other bond in this world. Speaking about how life has changed after he became a dad, Virat said, "Things changed quite drastically. Everything you have been used to changes. You have to be totally aligned with taking care of another life that's totally dependent on the mother primarily, but also dependent on the father." विराट also shared कि पापा बनना एक ऐसा लाइफ चेंजिंग अनुभव है जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता. It's been life changing. It has been a connection which has been different from anything that both of us have experienced before. I can't express how it feels from within. It's just been such a blessed and amazing period. विराट की तरह ही हार्दिक पांड्या भी एक प्राउड पापा है and the cricketer recently shared a cute video of himself and his son Agastya, जो पापा के सबसे फेवरेट हैं. हार्दिक ने अपने बेटे के साथ बिताए खास लम्हों का एक adorable वीडियो मोन्टाज अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए लिखा, "My boy, my heart, my life." अनुष्का ने इस पोस्ट पर रिएक्ट किया and dropped a heart emoji in the comment section. Well, looks like क्रिकेट फील्ड पे मैचेस जीतने वाले ये चैंपियन क्रिकेटर्स अपने बच्चों पे दिल हार चुके हैं and we find that extremely heartwarming and cute. आमिर खान ने क्यों फिल्म विक्रम वेदा से बैकआउट किया? क्या वजह स्क्रिप्ट थी या फिर आमिर और डायरेक्टर के बीच हो गई थी कहासुनी? Aamir Khan and Saif Ali Khan were supposed to play gangster and cop in the remake of the Tamil film Vikram Vedha. इस फिल्म को ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले अनाउंस किया गया था, बट पिछले साल आमिर opted out of the film and now Hrithik will be playing the role of the gangster. Here's the story. आमिर और सैफ दिल चाहता है कि कई साल बाद विक्रम वेदा के रीमेक में काम करने वाले थे. While Saif has been very successful at playing villainous roles before, इस फिल्म में वो एक upright cop की भूमिका निभाने वाले हैं
while Aamir was supposed to play a notorious gangster against his conventional image. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल आमिर ने इस फिल्म से बैकआउट किया और उनका रोल अब ऋतिक रोशन प्ले करेंगे। आमिर के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद कई रूमर सर्कुलेट हो रहे थे अबाउट व्हाई ही हैज लेफ्ट द प्रोजेक्ट। किसी ने कहा कि वो स्क्रिप्ट से सैटिस्फाइड नहीं थे, तो किसी ने क्लेम किया कि वजह डायरेक्टर के साथ क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। But now a web portal has claimed कि आमिर विक्रम वेधा फिल्म को कुछ ऐसे ट्रीटमेंट देना चाहते थे जिससे वो हमारे नेबरिंग एशियन कंट्रीज को भी अपीलिंग लगे। लेकिन पैंडेमिक के ब्रेकआउट और लद्दाख में इंडियन और चाइनीज ट्रूप्स के बीच हुए तनाव की वजह से आमिर का ये विजन पॉसिबल नहीं था। यही वजह थी कि आमिर ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। Okay, I'm getting up. आमिर के बैकआउट होने के बाद ऋतिक को ये फिल्म ऑफर की गई एंड ही सेड यस आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। एक सोर्स ने कहा ऋतिक ऑलवेज लाइक्ड द स्क्रिप्ट एंड वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्लेइंग द नेगेटिव लीड, सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। वेल, हर फिल्म अपनी स्टार कास्ट, किस्मत और कास्टिंग के कॉम्बिनेशन से बनती है। सो हियर्स होपिंग दैट ऋतिक एंड सैफ कैन क्रिएट मैजिक टुगेदर ऑन स्क्रीन। क्या हुआ? नहीं, यहाँ पे तो बराबर है, यहाँ से बराबर है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े बैन सब्सटेंस के केस में एक नया मोड़ आया जब एनसीबी ऑफिशियल्स ने इस केस के एलिजेड प्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया है। इस सस्पेक्ट का नाम वो साहिल शाह बता रहे हैं जो पिछले कई दिनों से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। साहिल सपोजिडली उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे जहां सुशांत का पहला घर था and the NCB alleges that Sahil used to also supply banned substances to 2 other peddlers जिन्हें पिछले साल अगस्त में अरेस्ट किया था। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, लेकिन सीबीआई और एनसीबी आज भी इस केस का और इस केस से जुड़े बैन सब्सटेंस नेटवर्क का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। It was alleged that Sushant and his then partner Riya consumed banned substances which they procured from their staff, who have also been questioned in the matter. While the CBI is yet to close the case officially and determine what caused Sushant's demise, the NCB has now expanded its investigation to question a number of beat-down celebrities. Take a look. एनसीबी पिछले कई महीनों से बैंड सब्सटेंसेस के सप्लाई नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है और इस सप्लायर के हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स को ढूंढने की कोशिश कर रही है। They have already questioned actors like Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Shraddha Kapoor, Arjun Rampal and Rakul Preet Singh among many others. Now the organization has claimed कि उन्हें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है जिसमें उन्हें इस केस से जुड़े मेन सस्पेक्ट का नाम ढूंढ लिया है। एनसीबी का कहना है कि इस प्राइम सस्पेक्ट का नाम साहिल शाह है। साहिल, who is allegedly married to an actress, is currently missing as per the NCB, लेकिन hopefully उसे वो जल्द ही गिरफ्तार कर पाएंगे। In another related development, सुशांत की alleged friend स्मिता पारेख ने सोशल मीडिया पे ये अलेज किया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत से पहले आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी। स्मिता ने एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पे ये भी अलेज किया है कि जब आदित्य ने रिया को छोड़ दिया, रिया को सुशांत की जिंदगी में प्लांट किया गया।
लेकिन ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक स्पिरिट का है जो रिया के साथ रहता है। जी हाँ, स्मिता हैज क्लेम्ड कि रिया कहती थी कि उनका एक चाइल्डहुड फ्रेंड 17 साल की उम्र में गुजर गए थे, लेकिन उनकी आत्मा आज भी रिया के साथ है। इसी आत्मा ने अलेजिडली रिया को सुशांत की जिंदगी में प्लांट किया। इन एलिगेशंस में कितना सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन होपफुली सीबीआई जल्द इस केस में किसी नतीजे पे पहुंचेगी और सुशांत की फैमिली और फैंस को क्लोजर मिलेगा। I mean, I truly believe that she is the torchbearer of this family. And this title it doesn't do justice because famous or not famous, she is the grounding in which all of us stand on. करीना ने की अपनी सास और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर की खूब तारीफ। करीना से जब अपनी सास के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कहा गया तो बेबो ने अपनी मदर इन लॉ के बारे में कई हार्ट वार्मिंग बातें शेयर की, बट शी ऑल्सो रिवील्ड दैट शर्मिला जी ने अपने सबसे छोटे ग्रैंडसन को अभी तक नहीं देखा। While Bebo has always been close to her Kapoor side of the family, वक्त के साथ साथ वो सैफ की सिस्टर्स, उनके किड्स सारा और इब्राहिम और उनकी मदर शर्मिला जी के भी बहुत करीब आ गई हैं। She has always been open about Saif's mother being an early role model of a working mother and wife in Bollywood, and it looks like her admiration for her has grown over the years. Take a look. करीना फरवरी में दूसरी बार मां बनी और उन्हें और दूसरे बेटे को देखने उनके परिवार से कई लोग आए। मासी करिश्मा कपूर, पेरेंट्स बबीता एंड रणधीर कपूर एंड सैफ्स किड्स सारा एंड इब्राहिम हैव ऑल विजिटेड करीना एंड द बेबी। लेकिन बच्चे की दादी शर्मिला जी अब तक अपने सबसे नन्हे शहजादे से नहीं मिल पाई हैं। ये रेवलेशन तब हुआ जब शर्मिला जी एक इंटरव्यू दे रही थी और उन्हें मिला करीना से एक खास सरप्राइज। करीना सेंट अ स्पेशल वीडियो मैसेज फॉर हर डियरेस्ट सासू मां, जहां उन्होंने अपने और अपनी सास के खास रिश्ते के बारे में बात की। Kareena was seen saying in the video, when it comes to talking about such an icon and legend, what is left to say? The whole world knows that my mother-in-law is one of the most elegant and graceful women to have walked the earth. She is warm, she is loving, caring, and someone who is always there, not just for her children, but her grandchildren, daughter-in-law. करीना also shared कि किस तरह शर्मिला जी ने उन्हें दिल से अपनाया and made her feel like a part of the family. बेबो ने शर्मिला जी से कहा कि सब उन्हें बहुत याद करते हैं और उनके साथ वक्त बिताने के लिए इंतजार कर रहे हैं। You've not been able to see the little one, the new addition to the family, but we're waiting to actually come together as a family, spend some time with you. पैंडेमिक के चलते शर्मिला जी कई महीनों से पटौदी पैलेस में रह रही है, जो उनके परिवार की पुश्तैनी प्रॉपर्टी है। रिसेंटली सोहा अपनी बेटी इनाया के साथ शर्मिला जी से मिलने गई थी, लेकिन करीना और सैफ कब उनसे मिल पाएंगे ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं है दैट शर्मिला जी इज एन आइकॉन ऑफ बॉलीवुड, नॉट जस्ट फॉर हर एक्टिंग स्किल्स बट ऑल्सो फॉर हाउ शी हैज कंडक्टेड हर लाइफ ऑफ स्क्रीन। We ended it on a high. सलमान खान और स्नेहा उल्लाल की फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव अपने मेलोडियस गाने और रोमांटिक स्टोरी की वजह से बहुत पॉपुलर हुई थी। लेकिन आखिर कैसे सलमान को इस फिल्म के लिए चुना गया एंड वाज ही इवन द फर्स्ट चॉइस? Salman Khan working with someone who looked much like Aishwarya Rai had raised many eyebrows when the movie had released. Sneha went on to work with Salman's brother Sohail as well in a movie, but hasn't worked with Salman after Lucky No Time for Love.
सलमान अपने एक्शन और स्टंट से भरी फिल्मों के लिए बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन वो कई रोमांटिक फिल्मों का हिस्सा भी रह चुके हैं। He has played the dreamy hero in many movies and amongst his most unusual projects was Lucky, No Time for Love, जिसमें वो एक परफेक्ट प्रिंस चार्मिंग बने थे। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर विनय सप्रू ने रिवील किया है कि उन्होंने इस फिल्म के स्क्रिप्ट को लेके पहले सलमान के भाई सोहेल को अप्रोच किया था। जी हाँ, सलमान was not the first choice for this role. I loved it. Salman is also the side. विनय ने एक इंटरव्यू में बताया, We had written a script and went to narrate the story to Sohail at his home in Galaxy Apartments. He lived on the first floor while Salman ran into us on the ground floor and asked us why we were there. We told him the purpose and he invited us inside and then congratulated us, saying he was doing our film. विनय एडेड कि सलमान ने फिल्म की कहानी भी नहीं सुनी। वो विनय और उनके को डायरेक्टर राधिका राव का काम देख चुके थे एंड ही हैड लव्ड द म्यूजिक वीडियोस द टू हैड डायरेक्टेड इन द पास्ट। बस इसी तरह उनकी फिल्म को एक लीडिंग मैन मिल गया। विनय और राधिका सलमान के साथ कई एड्स पे भी काम कर चुके हैं एंड दे कंसिडर द सुपरस्टार देयर मेंटर। विनय फील्स की जिस तरह के स्टोरीज पे वो काम करते हैं, इसमें सलमान परफेक्टली फिट होते हैं। He has the perfect face, the perfect smile, and he is just overall perfect. He spoils you for choices as whatever he does becomes iconic, and I feel even Salman is also destined to be a part of our projects. Well, Salman ऐसे ही बॉलीवुड के सुल्तान नहीं कहलाते। He truly is every woman's dream come true. Well, now it's time for a very quick break on the show, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Thanks to social media and the explosion of digital content in India, we have a whole new host of small screen celebrities. TV actors, hosts, content creators, social media bloggers and influencers. There is an entire new group of celebs who have emerged with a huge fan following over the years. So who are the ones grabbing the top spots on the list of trending celebs today? Take a look. हिना खान के आने वाली म्यूजिक वीडियो का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर हुआ है। The song is all set to release on 16th April और टीजर देख के लगता है कि ये गाना प्यार और हार्ट ब्रेक से भरा होगा। We can't wait to take a look. माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही जब साथ में डांस करें तो डांस फ्लोर पर आग न लगे ये नामुमकिन है। नोरा फतेही recently made an appearance on a dance reality show जहां उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ किया पॉपुलर गाने दिलबर का हुक स्टेप। शो के बिहाइंड द सीन्स फुटेज में कैप्चर किए गए इस प्राइसलेस क्लिप में माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही अपने आउटफिट्स में डैज़लिंग लग रही हैं। बिग बॉस विनर रुबीना दिलाइक ने अपने नए सॉन्ग गलत, जिसमें वो पारस छाबरा के ऑपोजिट दिखी थी, उस पे 2 सोशल मीडिया वीडियोस शेयर किए हैं। एक वीडियो में रुबीना दिलाइक अपना फेवरेट स्टेप करती दिखाई दे रही हैं और साथ ही अपने फैंस को टू क्रिएट रियल वीडियो ऑफ अ गलत सॉन्ग हुक अप स्टेप विद देयर ओन ट्विस्ट, तो दूसरे में वो एक कंटेंट क्रिएटर पर प्रैंक करती हुई नजर आई। दिव्यांका त्रिपाठी भी बनी फेमस सोशल मीडिया सॉन्ग बाजरे का सिट्टा की फैन। दिव्यांका त्रिपाठी ने इस सॉन्ग पर वीडियो बनाते हुए अपनी स्टाइलिश कुर्ती फ्लॉन्ट की। इस वीडियो को शेयर करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा, How much time I take to get ready? Only this much. मोनी रॉय है फुल वेकेशन मोड में और अपनी इन खुशी के पलों को उन्होंने एक वीडियो में रिकॉर्ड करके शेयर किया है। मोनी रॉय इज लुकिंग लाइक अ वाटर बेबी इन द वीडियो। राहुल वैद्य और उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार का नया म्यूजिक वीडियो मधान्या 18 अप्रैल को रिलीज होगा। शेयरिंग द पोस्टर ऑफ द सॉन्ग, राहुल वैद्य ने अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखा, Presenting to you the poster of our song Madhanya that you guys have been waiting for, from our hearts to yours. अली गोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन के साथ एक रोमांटिक वीडियो क्लिप अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर किया है। वीडियो में अली गोनी एक पंजाबी गाने के लिरिक्स गुनगुनाते हुए जैस्मिन भसीन को हक करते हैं। जैस्मिन भसीन अली गोनी के इस स्पॉन्टेनियस जेस्चर से खुश भी हैं, लेकिन वो थोड़ी सी शर्माती भी हैं। Three, go! Happy birthday, Tasho!
अनीता हसनंदानी has turned 40 और उनके पति रोहित रेड्डी ने अपनी बीवी और उनके बेटे आरव रेड्डी की मम्मी का जन्मदिन स्पेशल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहित रेड्डी pampered his wifey with 3 different cakes, a huge bouquet of roses and made sure to decorate the house with balloons. Wish you a very happy birthday, Anita. आपके हस्बैंड को मेरी तरफ से सलाम और ऐसे मुझे पसंद करते रहो क्योंकि पूरी आवाम के हस्बैंड ही मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। हाय निकिता, हाय सचिन, लॉट्स ऑफ लव, ऐसे ही प्यार करते रहो, हम ऐसे ही आग लगाते रहे। शी इज द बेस्ट। बिग बॉस से फेम पाने वाली अर्शी खान ट्रैवल कर रही थी प्लेन में और वहीं पर मिले उनको उनके कुछ फैंस। जहां एक फैन के साथ वीडियो बनाते हुए अर्शी खान ने कहा कि उन्हें आवाम के हस्बैंड्स ही पसंद करते हैं, वहीं दूसरी फैन ने अर्शी खान के लिए बोला शी इज द बेस्ट। She is the best. And with that, we come to the end of another episode of Planet Bollywood. We will be back tomorrow. You know the drill. Same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay home, stay safe, and stay tuned to our Zoom Facebook page, where you can get all the latest updates about your favorite celebrities. I'll see you guys tomorrow. Till then, take care.